Farzana Ali at 101 Incredible Women CEOs of Pakistan. آج ہمارے ساتھ ہیں مس رفت ملک who is chairperson of Prime School System and Girls College. آج ہم ان کی سٹوری انہی سے سنتے ہیں. ویلکم مس رفت. تھینک یو. مس رفت, آپ اپنی لائف جرنی ہمارے ساتھ شیئر کریں. بچے سچی بات تو یہ ہے کہ کب سے کام شروع کیا اور کیسے کیا, اب بہت لمبا سفر ہے. یہ ماسٹرز کیا اکنامکس میں, اس کے بعد شادی ہو گئی بزنس مین سے. شادی سے پہلے بھی میں کام کرتی تھی, ٹیچنگ کرتی تھی, اور مجھے بہت بچوں سے پیار تھا اور ہر وقت نرسری کلاس, پلے گروپ, ادھر ادھر گھومتی رہتی تھی. شادی ہوئی تو پھر زندگی میں کچھ سمجھ آئی کہ نہیں, کام دوسرے رخ میں بھی اکنامکلی ساؤنڈ کرنے کے لیے بھی ضروری ہے. پھر میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ بتایا, کیونکہ وہ تو پہلے ہی بزنس کرتے تھے, کہ تم اپنا کام شروع کرو. پھر میں نے اپنا اسکول بنایا, الحمدللہ اس کی برانچز بنائی, اور پلے گروپ سے لے کے میٹرک تک اسکول بچوں کا, پھر گرلز کا کالج, جہاں آپ جیسی بہت پیاری اور اچھی بچیاں ہیں. اس کے علاوہ مجھے لکھنے لکھانے کا بھی بہت شوق تھا. میں تقریباً 21 اگر میں غلط نہیں ہوں تو 22 یا 21 بکس میں نے لکھی ہیں بچوں اور خواتین کے موضوع پر. اس میں مختلف بیوٹی ٹپس, گھریلو ٹوٹکے, اور بہت سی قائد اعظم کی زندگی کے اوپر کوئز, علامہ اقبال کے, کیونکہ جیسے ابھی لائف بہت فاسٹ ہو گئی ہے تو وہ بکس جو ہیں بچے پڑھتے ہیں, اپنی ہسٹری کے بارے میں, اپنے ملک کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے. مس رفت, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جی آپ ایک آتھر بھی ہیں اور آپ نے بہت سی بکس لکھی ہیں. ہاں, آپ کی زیادہ تر بکس جو ہیں وہ آپ نے بچوں اور خواتین پر لکھی. بالکل. کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا کہ آپ ایجوکیشنسٹ تو تھی ہی, تو آپ لکھنے میں بھی آ گئے؟ کیونکہ یہ ریلیٹڈ فیلڈ ہے. اب جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو بہت زیادہ ان کو ٹائم لگتا ہے کوئی بھی بات کرنے میں, اور ہمارے زمانے میں سبجیکٹو جو کوشچن تھے, آبجیکٹو اور سبجیکٹو, یہ کوشچن پہلی دفعہ کوئی آج سے 20 سال پہلے ریز ہوا کہ بچوں کو بریف ہر چیز بتانی چاہیے تاکہ ذہن میں رہے. اس سے پہلے رٹے کا کلچر بہت زیادہ تھا, تو بچے اکثر کسی بھی کوئز میں جاتے یا نیلام گھر پروگرام میں بہت جایا کرتے تھے. اسکول کے بچے کہیں بھی جاتے تو سب سے پہلے وہ اصل میں ٹیچر کا امتحان ہوتا تھا کہ میم ہمیں آپ بتائیں کہ کیسے پریپریشن کریں. پھر ہم لوگ اس وقت اتنے ڈیووٹڈ تھے کہ ہم کوشچنس بنا کے خود ساری رات پڑھ کے پھر بچوں کو تیاری کراتے تھے. آج کا استاد جو ہے اسے تو سب چیز بنی بنائی نیٹ سے ہر جگہ مل جاتی ہے, لیکن ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی تھی. پھر وہاں سے مجھے یہ آئیڈیا آیا کہ جب میں اتنا زیادہ کام کرتی ہوں بچوں کے لیے, تو پھر میں نے بکس لکھی. پھر پرنٹنگ اور پبلیکیشن کا میرا ادارہ تھا, اس میں نے کچھ بکس 100 سے زیادہ ٹائٹل جو ہیں وہ پرنٹ کیے ہیں. پھر میں نے جب اپنی بکس بھی لکھی تو وہ اتنی پاپولر ہوئیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں بکس جو ہے عام طور پر اسکول اور کالجز کے بچوں کو فری دیتی ہوں پڑھنے کے لیے. جہاں گئے, کسی کا ایگزام ہے, پرائز دینے ہیں بچوں کو, تو مختلف موضوعات کے اوپر بچوں کو کتابیں لکھی. ٹھیک ہے, وقت گزرتا گیا, اسکول, کالج, پبلشنگ سارا. پھر اس کے بعد بچے اس وقت میرے چھوٹے تھے, پھر میرے بچے بڑے ہوئے, ٹائم تھوڑا سا اور بڑھا, تو پھر ہم نے ڈیٹس کے نام سے دانیال اینڈ دعا کنسٹرکشن کمپنی, ایک کنسٹرکشن کمپنی بنائی الحمدللہ, جو اب بہت احسن, بہت اچھا کام کر رہی ہے اور بڑی ویل آرگنائزڈ اور ریپیوٹیڈ کمپنی ہے. اس میں ہم سارے کنسٹرکشن کے معاملات کو دیکھتے ہیں. اور جیسے آپ لوگ ینگ ہیں ابھی, ہم بھی اپنے زمانے میں بہت اچھے آئیڈیاز رکھتے تھے, اور اگر میں یہ کہوں کہ ہمیں دیکھ کر بہت سے لوگوں نے, میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو, بہت سی بچیوں کو خود سے بزنس سکھایا ہے اور بزنس سٹارٹ کرایا ہے. میرا پلیٹ فارم جو ہے اسکول یا میرا آفس, وہ بچوں کی اور جو خواتین ہیں ان کی ویلفیئر کے سینٹر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے. آپ دیکھیں میرے پاس عورتوں کے ایسے مسائل آتے ہیں جن سے میرا دور دور تک کوئی تعلق نہیں, لیکن لوگ آتے ہیں کہ جی آپ ہماری ہیلپ کریں. اچھا, یہ جو سفر ہے آپ کا
फ्रॉम टेंडर एज टू दिस एज ग्रुप, आपने एक कॉलेज गर्ल से स्टार्ट किया और अब आप चेयरपर्सन हैं, आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाती हैं, आप एक पब्लिशिंग सेंटर को देखती हैं, इसमें आपको बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा। हाँ बिल्कुल। क्या वो कुछ आप हमसे डिस्कस करेंगे? उसमें सबसे पहली बात तो ये कि जब बच्चों को छोड़ के जब बच्चे छोटे थे उनको छोड़ के आके ऑफिस बैठा करती थी, तो मुझे हर वक्त एक वहम रहता था, मुझे लगता था जैसे मेरी बेटी या बेटे की आवाज़ आ रही है और वो परेशान है, रो रहे हैं। मैं घर फ़ौरन फ़ोन करती, मेड को पूछती या जो भी कोई घर में बड़ा होता, तो कई दफ़ा ऐसा होता था कि वाकई बच्चा रो रहा होता था। ये सबसे ज़्यादा जो माँ काम के लिए निकलती है। लेकिन अब हमने अपने कॉलेज में डे केयर सेंटर भी बनाया हुआ है कि जो टीचर्स आए पढ़ाने के लिए, जो मुश्किलात मुझे थी वो दूसरी औरतों को ना हो। और इसके अलावा फिर बाकी मेरा ख्याल ये है कि अगर आपका हस्बैंड कोऑपरेटिव हो, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये बात कहते हुए बहुत अच्छा लगता है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे हर शोबे में बहुत इनकरेज किया। अगर मैंने कहा भी कि मैं कोई काम नहीं कर सकती तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं, उन्होंने कहा नहीं तुम कर सकती हो। सो कॉन्टिन्यूस पुश की वजह से ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात आई या जो भी काम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरा किया। यहीं पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने बोला कि आप बहुत से काम जो थे आपने ऑल टुगेदर किए, उसमें बहुत से आपने चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन आपके हस्बैंड की आपको एक कांस्टेंट सपोर्ट रही बहुत ज़्यादा। बट स्टिल आप एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के अंदर एक ऐसे बिजनेस में आई हैं विच इज कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बिल्कुल, जिसमें डेफिनेटली आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता होगा। एंड देन व्हाट इज योर टेक ऑन जेंडर डाइवर्सिटी? मैं आपको मज़े की बात बताऊं, ये कोई 15-16 साल पहले की बात है। संडे को हमारे पास टाइम होता है तो मैं अपने हस्बैंड के साथ गई, हमारे 2 घर तैयार थे फेज़ 5 में। तो डीलर्स आए जो दिखाते हैं घर और सेल का सारा। अल्लाह की तरफ से वो सेल हुए अच्छे, तो भी लोग आए जिन्होंने मुझे देखा था संडे को, क्योंकि आमतौर पर तो मैं मसरूफ़ होती हूँ। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा कि आपको अल्लाह ने बहुत काम दिया, इज्जत दी है, लेकिन वो जिस लड़की के साथ आप फिरते हैं ना उसको हम जानते हैं। उन्होंने समझा कि मैं शायद स्कूल में हूँ, क्योंकि बहुत ऑड लगता था लोगों को कि कोई औरत हो और वो कंस्ट्रक्शन का सारा। तो मेरे मियाँ ने कहा कि मेरा तो उसके साथ फिरना मजबूरी है, वो मेरे 2 बच्चों की माँ है, ठीक है। तो अब मुझे देखकर बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो इस शोबे में आई हैं। अब कोई माइंड नहीं करता, अब आप जिसको देखें वो अपनी बीवी को अपने साथ, क्योंकि वहाँ हमने आदत डाल दी है लोगों को कि जो बिल्डर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो डीलर्स हैं, जो भी इस शोबे से रिलेटेड लोग हैं, आप सबको देखेंगे कि अब ख़वातीन बड़े शौक़ से, बड़े इंटरेस्ट के साथ एग्जांपल देती हैं कि अगर वो लोग कर सकते हैं ऐसे तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल ये है कि सोसाइटी में नए ट्रेंड्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए आपको थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ता है, और अगर आप अपने काम पे फोकस रखें, लोग थोड़े दिन तो कोई बात करेंगे, लेकिन बाद में फिर लोगों के पास इतना, वो फिर यूज्ड टू हो जाते हैं। अब जैसे हम काम करते हैं, शुरू में हम कहते हैं कि जी ये नहीं काम करना, इसमें मेल जो हैं ये वही कर सकते हैं। आप चंद सालों के बाद देखें, मैं ऐसी बहुत सी ख़वातीन को जानती हूँ जो बहुत से शोबों में उनका नाम है, और मैंने खुद बहुत सी बच्चियों को, बजाय इसके कि आप अपने ससुराल में मार खाती रहे मियाँ से, इससे बहुत बेहतर है कि छोटे छोटे कारोबार मैंने बहुत लोगों को शुरू कराए, और बहुत सी लोगों को मशीन, सिलाई मशीन वगैरह रमज़ान में अक्सर। सिंस आपने ये जो ग्लास सीलिंग ब्रेक किया, अभी आपने बोला कि जी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में भी आप आ गई, आपने ख़वातीन के लिए भी बहुत काम किया, आपने बच्चों के लिए भी बहुत काम किया, और अब आप बहुत सी ख़वातीन, बच्चों, यूथ के लिए आप एक रोल मॉडल हैं एंड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। आपकी लाइफ में आपके लिए कौन रोल मॉडल? मेरे फादर। मैंने हर वक्त अपने वालिद को काम करते हुए देखा है, और उन्होंने कभी बच्ची या बच्चे में फ़र्क महसूस नहीं किया था। एक होता है ना कि बेटी को, बल्कि मैं समझती हूँ कि वो हमें अपने जो हमारे भाई हैं उनसे ज़्यादा आगे रखते थे। कोई भी काम कह देते थे तो वो उस पर हमारी पसंद का ख्याल रखते थे, यानी अगर कोई काम हुआ है तो ठीक है, अगर आप नहीं कर सके तो वो कभी हमें मायूस नहीं करते थे, कि डिसअपॉइंट नहीं करते थे। आप ख़वातीन को कोई मैसेज देना चाहेंगी इस प्लेटफॉर्म से? मैं एक ही मैसेज है, और वो ये कि कभी हिम्मत ना हारें,
अगर आप मुस्तकिल काम करें और कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, मुश्किलात हार जाएंगी, लेकिन अगर आपका हौसला हो तो आप सब काम कर सकती हैं। बजाय इसके कि हम देखें कि कोई आए, हमें इकोनॉमिकली इतना साउंड होना चाहिए कि हम अपनी ख्वाहिशें अपने, बजाय इसके कि हम देखें कि कोई घोड़े पे बैठ के आए तो हमें ये दे जाए, तो इससे बहुत बेहतर है कि हम मेहनत करें और जो भी अपनी ख्वाहिशें हैं, अपनी ज़रूरतें हैं, उनको ख़ुद पूरा करें और सोसाइटी के लिए एक आप बेहतर इंसान बन सकती हैं जब आप इकोनॉमिकली डेवलप्ड हों। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में भी ख़वातीन को काम करना चाहिए, वो किसी भी शोबे में हो। अब देखें डॉक्टर्स बच्चियां टॉप करके आती हैं, हमारे से इतनी लायक बच्चियां पढ़ के जाती हैं, बाद में वो काम ही नहीं करती हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सोसाइटी में औरत को अपना हिस्सा, अपना किरदार अदा करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए, इसी से हमारा मुल्क आगे जाएगा। So you're truly source of inspiration, and as you have given message to females कि जी being persistent is a key to success. So आप इस प्लेटफॉर्म के लिए जो स्पेशली फीमेल्स के लिए बनाया गया है, फीमेल चेयरपर्सन्स के लिए 101 इनक्रेडिबल वुमेन सीईओज, कोई मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, मैं यहाँ जितनी भी बहनें, हमारी बहनें हैं, मैं उनको ये मैसेज दूंगी कि नए आने वाले लोगों को इनकरेज करें। औरतों में ये एक चीज़ है कि वो दूसरों को इनकरेज नहीं करती, वो कहती हैं जो कुछ है वो हमारे पास हो, लेकिन हमें बड़ा दिल करके हर उस औरत की मदद करनी चाहिए जो कोई भी बिज़नेस शुरू करना चाहती है। प्लीज़ लोगों को डिस्करेज मत कीजिए। मैंने देखा है कि लोग इतना ज़्यादा उसमें चले जाते हैं कंपटीशन में कि किसी ने कोई बिज़नेस शुरू किया, आप बिलीव नहीं करेंगे, हम किसी शादी में, किसी गैदरिंग में जाएं, लोग हमें, मुझे, मेरे हस्बैंड को अलग अलग किट्ठा पकड़ के बैठ जाते हैं, जी अब बताएं अब क्या बिज़नेस शुरू करें, आजकल कौन से बिज़नेस का ट्रेंड है, कौन से बिज़नेस में ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। लेकिन हम, क्योंकि मशवरा अमानत होता है, ईमानदारी से मशवरा दें। जितनी भी सीईओज़ हैं वो सब उन लोगों को तवज्जो दें जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम उनका हाथ पकड़ेंगे तो फिर ही वो आगे जा सकेंगे। जी, आज आपने हमारे साथ बहुत खूबसूरत कॉन्वर्सेशन की और टाइम शॉर्ट होने की वजह से अभी हमें आपको थैंक यू बोलना होगा। थैंक यू। सो इट वाज ग्रेट प्रिविलेज टू हैव यू विद अस। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत अच्छी बच्चियां हैं, इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे आप लोग। मेरी बहुत सी दुआएं हैं आपके प्लेटफॉर्म के लिए और इंशाल्लाह आप अपने सारे टारगेट अचीव करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक इट वाज ग्रेट टू हैव यू। थैंक